of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 32, I had discussed exercise 1.3. In exercise 1.3, I had discussed the decimal representation of real numbers. Got it? So there are two types of decimal representation of real number. One is terminating and another is non-terminating. Got it? Non-terminating. In terminating rational number, what do you mean by terminating decimal representation? When your remainder comes to be 0, then in that case you will say that the decimal expansion terminates. If your remainders never comes to be 0, that means your decimal representation is non-terminating. Terminating means non-repeating. Terminating means non-repeating and non-terminating means repeating. Repeat करेगा यहाँ पे, ठीक है? And exercise 1.3 question number 1 to 4. The based on decimal representation of real number, which I had already discussed with you. Okay. So in this video session 33, I would like to discuss some other question of exercise 1.3, or you can say the remaining question of exercise 1.3. So have a look. To question number 5 of exercise 1.3. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. बेटा you have given an expression 1 by 17. आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि कितने मैक्सिमम डिजिट्स के बाद ये रिपीट करेगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन. हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर आफ्टर हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर द डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग है, ठीक है? दिस यू हैव टू चेक. सो आई एम erasing the question because the solution is lengthy. So you have the number 1 by 17. You have an expression 1 by 17 and you have to divide this number. So 1 is the smallest and 17 is the largest number. ठीक है? So through decimal division we will proceed this question. 1.0 अभी भी नहीं जाता तो 0.0. 17 5s are 85. 10 में से 5 गए 5. 9 में से 8 गए 1. 0. 17 8s are 136 बेटा. 17 8s are 136. 10 में से 6 गए 4. 4 में से 3 गए 1 0 और 140. बेटा look at here, the table of 17 is written on the board. You can check from there. ठीक है? अगर कुछ गलत होता है तो you can check from there also. Okay, now again 17 8s are 136. 10 में से 6 गए 4. 3 में से 3 गए 0. 17 2s are 34. 10 में से 4 गए 6. 17 3s are 51. 10 में से 1 गए 9. 17 5s are 85. 10 में से 5 गए 5. 17 2s are 34. 10 में से 4 गए 6 and 4 में से 3 गए 1. Got it? 160. Now 17 9s are 153. 10 में से 3 गए 7. 5 में से 5 गए 0. 17 4s are 68. 10 में से 8 गए 2. 6 में से 6 गए 0. 17 1s are 17. 20 में से 17 गए 3. फिर 0. 17 1s are 17. 10 में से 7 गए 3 and 2 में से बन गया 1. Got it? अब 13 इधर है ना बेटा, स्पेस नहीं है, सो आई एम कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड. 13 और 17 जो भी आंसर होगा मैं वहां आगे लिखूंगी. नाउ 17 7s are 119. 10 में से 9 गया 1. 2 में से 1 गया 1. 17 7s are 119. 17 6s are 102. 10 में से 2 गए 8. 0 आ गया. 17 4s are
68, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1. नाउ 17 6 जा 17 7 जा 119. 10 में से 1 गए, 10 में से 9 गए 1 और 1 में से 1 गया 0. अब देखो 1 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था और 1 ही आ गया. तो इसका मतलब इसके बाद सारा रिपीट ही करेगा ना. आफ्टर दिस ऑल द डिजिट विल रिपीट, सारे के सारे डिजिट्स रिपीट होंगे. सो हियर 1 इज द रिमाइंडर. 1 आपका क्या रिमाइंडर आ गया, लेकिन 1 यही है जहां से आपने स्टार्ट किया था वही आ गया. 1 देखो जहां से आपने स्टार्ट किया था वही चीज आ गई है. तो अब आप क्या करोगे बेटा, तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे. ठीक है. सो 1/17 कैन बी रिटन एज 0.05882935294117647. तो अब इन सबके ऊपर बार इंडिकेट करोगे. वाई यू आर इंडिकेटिंग बार, बिकॉज 1 से स्टार्ट किया था और 1 ही आ गया. तो इसके बाद फिर से यही डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, कहीं एंड नहीं होगी. So this is an example of non-terminating. This is non-terminating or repeating decimal expansion. Got it? Expansion. So after, what are the maximum number? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो maximum number of digits in which the decimal expansion repeats. decimal expansion repeat करेंगे तो वो maximum digit क्या है, 16 है. कितनी है, 16 है. I hope you understood this question. Exercise 1.3, question number 6. Look at the several examples of rational number in the form of p by q. Got it? Where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q की फॉर्म में होनी चाहिए. P and Q are integers. ठीक है. With no common factors other than 1. मतलब जो आप ये नंबर लेते हो ना, ये नंबर p by q, इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है. ऐसे एग्जांपल्स आपने लेने हैं. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होंगी, टर्मिनेट करेंगी. ठीक है. टर्मिनेट्स. ऐसे आपको एग्जांपल्स लेने p by q के, जिसमें p by q का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करनी चाहिए. ऐसे आपको एग्जांपल्स लिखने हैं और आपको ये बताना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड. q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है. गॉट इट. सो देखो हमेशा ध्यान रखना कि आई एम डूइंग द सॉल्यूशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा. If the denominator means what? P is the numerator and Q is the denominator. If the denominator is of 2, 4, 6, 8, 10, अगर आपके डिनोमिनेटर में ये 2, 4, 6, 8, 10 अगर ये आता है, then in that case you can say that then decimal expansions terminates. इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये चीज आप लर्न कर लेना कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है p and q, p by q, q आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से, 8 से, 10 से, तो जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो टर्मिनेट करेगी. ठीक है. चेक करके दिखा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 1/2. देखो 2 इज इन द डिनोमिनेटर. जब आप इसको 1/2 को करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होता है, देखो 1 से क्या 2 बार रखा, 0.0, 2 5 10 10 आ गया. तो ये कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेट्स कर रही है, टर्मिनेट्स
डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगी, टर्मिनेट्स करेगी। और यहाँ पे देखो एक चीज और देखना है कि 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के फैक्टर क्या है 1 का फैक्टर क्या है 1, 2 के फैक्टर्स क्या है 1 और 2, तो कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है 1 आ गया ना, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 1 है। इन द सेम वे 7/8, अनदर एग्जांपल 7/8 ले रही हूँ, 7 को अंदर करा 8 को बाहर, 7 1 जा 7, 8 8 जा 64, 0.8 8 जा 64, 10 में से 4 गए 6, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, गॉट इट। 10 में से 6 गए 4, 8 5 जा 40, देखो आ गया ना। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये भी क्या टर्मिनेट्स, ये भी टर्मिनेट करेगी, ठीक है। और ये क्या है 7/8, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर भी 1 है और ये टर्मिनेटिंग भी है। तो दीज आर 2 एग्जांपल्स, यू कैन टेक मोर ऑल्सो, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। सो व्हाट कैन यू से, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, आप कहते हो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1/2, 1/2, यहाँ 2 की पावर क्या है, द पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 क्या है 1 है, पावर ऑफ 2 की पावर क्या है 1, यहाँ पावर ऑफ 2 क्या है, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, तो 8 की क्या है, पावर ऑफ 2 इधर क्या है, पावर ऑफ 2 यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, Q satisfies the property, Q satisfies the property, Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो डिनोमिनेटर है मतलब Q है, Q must be in the power of, Q must be the power of 2, 5 और both, मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, 2 की पावर 1 आ जाए, 2 की पावर 2 आ जाए, ठीक है, 5 की पावर 1 आ जाए, क्योंकि ये 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 5 और 2, 8 के फैक्टर्स क्या है 2 into 2 into 2, ठीक है। तो ये जो है ना 10, 5 and 2, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या बोथ आएगा, तो ये क्यों इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Question of exercise 1.3, question number 7 is write 3 numbers. You have to write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Beta, in this question you have to give an example of 3 numbers. उन 3 numbers के examples आपने देने हैं जिनकी decimal expansions कैसी होती है, non-terminating. And you know very well what do you mean by non-terminating. Non-terminating decimal representation means when the denominator never comes to be 0. जब आपका denominator 0 नहीं आता, इसका मतलब वो repeat होता जाता है, तो this means this is non-terminating decimal expansion. So I am writing examples one by one. Solution 1/3. 1/3. 1/3 means you have to divide 1/3. So 0.33 is 9, 10 में से 9 गए 1, 3 3 is 9, 10 में से 9 गए 1, 3 3 is 9, 1, मतलब जहां से शुरू किया था वही आ रहा है बार बार, तो that means 1/3 can be written as 0.333, चलता जा रहा है। So this is an example of non-terminating. तो ये कैसा है, non-terminating, non-terminating. Got it? Next, non-terminating or you can say non-recurring. Next example ले लो 6/7, 6 अंदर 7 बाहर, 7 8 are 56, 10 में से 6 गए 4, 7 5 are 35, 10 में से 5 गए 5, 7 7 are 49, 10 में से 9 गए 1, 7 1 are 7, 10 में से 7
गए 3, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए 2, फिर 7 2 जा 14, यहाँ पे कर रही हूं मैं बेटा 14, ये वाला 20 आई हैव कॉपीड हियर, ओके। 7 2 जा 40, 10 में से 4 गए 6, ये देखो 6 से शुरू किया था 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद जो नंबर है वो रिपीट करेंगे, तो 6 by 7 कैन बी रिटन एज 0.857142। देखो बेटा यहाँ पे 6 आ गया ना, और 6 से ही स्टार्ट किया था और 6 आ गया, इसका मतलब ये सारे नंबर फिर से रिपीट करेंगे, ये नंबर सारे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड बार ऑन द एंटायर नंबर्स, इसलिए सारे नंबर्स पे, सारे डिजिट्स पे मैंने बार मार्क कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, गॉट इट। एक ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इन थर्ड एग्जाम्पल यू कैन टेक 6 by 9, got it? I am taking 6 by 9. So now divide 6, 9. 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 6 are 54. 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, देखो 6 से स्टार्ट किया था और 6 आ गया, दैट मीन्स ये 6 6 रिपीट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 6 by 9 कैन बी रिटन एज 0.6 bar. Bar indicates that this number 6 is repeating. So this is also an example of non-terminating. Got it बेटा? अब आपको ये कैसे, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम को कैसे एग्जाम्पल ऐसे लर्न थोड़ी ना करने हैं। ये भी सही बात है कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया कि यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ 3 numbers whose decimal expressions are non-terminating, तो आप रटा रटाया आंसर थोड़ी ना लिखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर होता है, देखो P by Q मीन्स 1/3। तो जो ये डिनोमिनेटर है ना बेटा, या इस डिनोमिनेटर में इधर यू कैन टेक द नंबर 3 6 9 7। आपने डिनोमिनेटर्स में ये वाले नंबर्स लेने हैं, कौन से नंबर लेने हैं, 3 6 9 7। ऊपर कोई मर्जी नंबर रख लो, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई सा भी नंबर लिख लो। अब देखो मैंने जो ये एग्जांपल्स लिए, मैंने 3 6 और 9 ही लिए, 3 6 और 9 लिए। आप 7 भी ले सकते हो, 7 के बाद यू कैन टेक 11 ऑल्सो, ठीक है। आप डिनोमिनेटर में ये वाले नंबर्स लोगे और उसको डिवाइड करोगे तो ऑलवेज दिस गिव्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया आपको? तो आपको डिनोमिनेटर में 2 4 8 10 ये नंबर नहीं लेने, 2 4 8 10 डिनोमिनेटर में ये नंबर नहीं लेने। अगर ये नंबर लेते हो तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगी, क्या करेगी, टर्मिनेट्स करेगी। आप डिनोमिनेटर में कौन से नंबर लोगे, 3 6 9 7। अगर इन नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 3 6 9 7 11 13 एंड so on, then in that case you get non-terminating decimal representation. Got it? I hope you understood this question. Question number 8 of exercise 1.3. This question is important. Okay. Write 3 different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. Beta, you have given 2 numbers 5 by 7 and 9 by 11. ठीक है, these are the rational numbers. अब आपको 3 different irrational numbers बताने हैं between the numbers, ठीक है। Now go back to exercise 1.1. Exercise 1.1 में what you did, आपने क्या किया था, in exercise 1.1 में you have given 2 numbers, आपको 2 numbers दिए हुए थे and between 2 numbers you have to find out different irrational numbers. Got it? And I had told you that between any 2 rational numbers, suppose 3 by 5 and 4 by 5, ठीक है, ये 2 numbers हैं, आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में you have to find 3 or 4 rational numbers. Okay, so what I told you that between any 2 rational numbers there are infinitely many rational numbers. 2 rational numbers के बीच में बहुत सारे rational numbers होते हैं which you cannot count, ठीक है। In the same way 2 numbers के बीच में
देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स ऑल्सो, बहुत सारे इनफाइनाइटली इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पे 3 फाइंड आउट करने हैं। तो हैव अ लुक बेटा, नाउ यू हैव द नंबर 5/7। अब आपको क्या निकालना है? इरैशनल नंबर्स निकालने हैं ना। तो व्हाट विल यू डू? डिवीजन प्रोसेस। जब आप रैशनल निकालते थे तो वहां पे आप क्या करते थे? 1/2 करके दोनों का सम करते थे, ठीक है? ऐसे सेकंड निकालते थे, थर्ड निकालते थे। अब यहाँ पे क्या करोगे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो 5 को यहाँ रखा अंदर और 7 बाहर। 7 7 सा 49, 10 में से 9 गए 1, 7 1 सा 7, 10 में से 7 गए 3, 7 4 सा 28, 10 में से 8 गए 2, 7 2 सा 14, 10 में से 4 गए 6, 7 8 सा 56, 10 में से 6 गए 4, 7 5 सा 35, 10 में से 5 गए 5। अब देखो बच्चे, आपने 5 से स्टार्ट किया था और 5 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसके बाद सारे नंबर रिपीट होंगे बेटा। जहां से स्टार्ट किया था वही नंबर आ गया, इसका मतलब फिर से 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। किसका एग्जाम्पल है ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। सो 5/7 का आंसर क्या है? 5/7 कैन बी रिटन एज 0.714285 और आपने क्या कर दिया? बार मार्क करा है। दिस बार इंडिकेट्स दैट 714285 इज रिपीटिंग। ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है कि 714285 इज रिपीटिंग। व्हाई दिस नंबर, व्हाई दीज डिजिट्स आर रिपीटिंग? बिकॉज जहां से आपने स्टार्ट किया था वही वो नंबर आ गया। गॉट इट? इन द सेम वे आई एम डूइंग 9/11। गॉट इट? तो 9 को अंदर करा, 11 को बाहर, तो 11 8 सा 88, 10 में से 8 गए 2, 11 1 सा 11, 10 में से 1 गए 9। अब देखो 9 से स्टार्ट किया था, 9 आ गया। यू हैव स्टार्टेड विद 9 एंड 9 विल कम अप, 9 आ जाएगा ना दोबारा से। तो इसका मतलब क्या हो गया? 9/11 कैन बी रिटन एज 0.81। बेटा इसका मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था वही नंबर आ गया, तो ये नंबर रिपीट करेगा, ठीक है? तो 0.81 बार, 81 बार इंडिकेट्स दैट 0.81, 81 81 81 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, एंड ही नहीं होगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स। आपने क्या निकाले? 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सो 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11 are 1 2 3। ऐसे अलग अलग निकालूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है? 0.7 है, यहाँ 0.8 है। 0.7 से 0.8 तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है? तो अपनी मर्जी से आप कोई से भी नंबर लिख दो। सो आई एम राइटिंग 0.724285 बार। ये नंबर आ सकता है, इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है ना, 7 1 की जगह मैंने 4 कर दिया। ऑल्सो 0.745285, कोई भी नंबर लिख दो बेटा, यू कैन राइट एनी नंबर, ठीक है? इसमें भी बार लगा दो। लास्ट नंबर देखो 8 है, तो 8 से पहले वाला क्या आ जाएगा? 0.794285 बार। बेटा यू कैन राइट एनी नंबर्स, आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो जो इनके बीच में आएंगे। देखो 7 1 के बाद 7 2 भी हो सकता है, 7 3 भी हो सकता है, 7 5 भी हो सकता है, ठीक है? तो कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से लिख देना, जैसे मैंने लिखे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव गिवन 2 नंबर्स, ठीक है, आपको 2 नंबर्स दिए और उनके बीच में आपने इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड you can find out. I hope you clear this question. This is the last question of question number 9 of exercise 1.3. इसके बाद exercise 1.3 खत्म हो जाएगी, ठीक है?
तो in this question, what the question is saying, classify the following numbers as rational or irrational according to their type. अच्छा, अभी अब आप कैसे बताओगे कि you have given such numbers, ठीक है, in front of you, and you have to tell whether they are rational or irrational. So just note it down, beta. Numbers rational, irrational. ठीक है. If the decimal expansion is terminating or non-terminating but recurring, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो रैशनल नंबर होगा. अभी आप लिखो, मैं अब आपको समझा रही हूँ कैसे है. इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, सो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा. इसमें क्या होगा, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज non terminating non recurring, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स. तो अब आपके पास है, अगर आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल, ठीक है, मतलब इस टाइप के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि वेदर दीज नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल. तो अब आपको ये पॉइंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है. सो आपको प्रॉपरली इसके नोट्स बना लेना. तो अब आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल. रैशनल के लिए है इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू बी जीरो. क्या था, व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू बी जीरो, ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या था, व्हेन द रिमाइंडर नेवर कम्स टू बी जीरो. तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, बट रेकरिंग होना चाहिए. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर. कैसे, मान लो बच्चे आपके पास नंबर है 15, सपोज यू हैव द 15, सो यू कैन इजिली से दैट दिस इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक है. सपोज अगर आपके पास एग्जांपल है 1/2. Suppose you have an example of 1/2. Look at here. Suppose you have an example of 1/2. So 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.5. तो 0.5 कैसा है, रैशनल नंबर है. 0.5 कैसा है, रैशनल नंबर है. ऑन द अदर हैंड 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1 को 3 से डिवाइड करना है. बेटा लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 3 3 9, इसका मतलब 0.33 सोन. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार. तो ये कौन से एग्जांपल्स हैं, ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स है. कैसे एग्जांपल्स है, रैशनल नंबर्स के, ठीक है. इसका मतलब रैशनल नंबर के लिए आपको चेक क्या करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट रेकरिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बच्चे, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक जैसे ही रिपीट हो रहा है. जब एक जैसा नंबर रिपीट होता है, जैसे 0.333333, तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, रैशनल नंबर के, वो रैशनल नंबर है. अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है 0.47 एंड सो ऑन, इसका मतलब क्या हुआ, 47 रिपीट हो रहा है. तो आप क्या लिखोगे इसको, 0.47 पे बार. तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. रैशनल नंबर्स में क्या होता है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, टर्मिनेट यू नो वेरी वेल,
कि आपका रिमाइंडर डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर हो गया। अगर कोई नंबर सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 3 है तो 3 ही रिपीट हो रहा है, 4 7 है तो 4 7 ही रिपीट हो रहा है। सो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर्स की। अब ये वाला देखो, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग इधर भी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही वही होता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इस केस में भी तो रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे इस केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है ना 0.2 3 4 7 5 6 9 एंड सो ऑन, इस टाइप का नंबर है, यहाँ पे सारे नंबर अलग अलग है और चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे भी तो सारे नंबर्स अलग अलग हैं और चलते ही जा रहे हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे मैं बार नहीं लगा सकती। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर 3, यहाँ 4 7 रिपीट हो रहा था तो मैंने 4 7 पे बार इंडिकेट किया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बार इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे बार इंडिकेट नहीं हो रहा। यहाँ पे बार इंडिकेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफाइड नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा। यहाँ हर नंबर अलग अलग आते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग? बेटा ध्यान से समझ लेना, कोई भी डाउट हो थ्रू पोर्टल यू कैन आस्क बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग के, लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे बार इंडिकेट किया। पर इन दिस केस यहाँ पे बार इसलिए इंडिकेट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, पर ये चलते ही जा रहे हैं, कहीं एंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, किसके होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मीन्स इरैशनल नंबर। तो ये एक इरैशनल नंबर है। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल है पाई का, आपने पढ़ा है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। दिस इज योर होमवर्क बेटा। 22/7 को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद देखोगे कि ये एंड होगा ही नहीं, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। अगर मैं ये नंबर देखूं 22/7 तो आप ये तो बोल दोगे मैम ये तो रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। क्या होता है कि ये जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये कहीं एंड नहीं होती है, ठीक है। सो पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। पाई किसका एग्जाम्पल है, इरैशनल नंबर का। क्यों? क्योंकि जब आप पाई 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये नंबर चलता ही जाएगा, कहीं एंड नहीं होगा, ठीक है। और इन टाइप के नंबर्स में क्या होता है, बार आ जाता है, ठीक है। बट दोनों के दोनों एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग के हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चंस में अब आपको यहाँ पे बताना है, मैं ये डेफिनेशन इरेज नहीं कर रही, ठीक है। अब आपको ये एग्जांपल्स दिए हुए और आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। देखो लुक एट दिस क्वेश्चन, √23 आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, ठीक है। इन 8th स्टैंडर्ड यू डिड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, गॉट इट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे ना, आप देखोगे नंबर चलता ही जाएगा, कहीं एंड नहीं होगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 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 चलता जाएगा, कोई नंबर एंड नहीं होगा। सो दिस इज इरैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। और वैसे भी √23 है, प्राइम नंबर है ना, 23 इज अ प्राइम नंबर और अंडर रूट के अंदर है, तो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरैशनल नंबर, गॉट इट। अब देखो ये क्या है, अंडर रूट में 225, ये किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, एंड यू नो दैट 15 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। अब इधर देखो 0.3796, ये कैसा है, 0.3796, इसके बाद कहीं डॉट डॉट नहीं है, कहीं डॉट डॉट नहीं है ना, और ना ही कहीं पे बार मेंशन है, तो ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, आप रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि टर्मिनेट क्यों कर रहा है, टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तभी तो इसके आगे डॉट 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 और बार नहीं है। जब किसी भी नंबर के आगे डॉट 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 और बार इंडिकेट नहीं है, इसका मतलब वहां पे रिमाइंडर 0 आ गया है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, गॉट इट। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब इधर देखो, लुक एट केयरफुली, 7.478
इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है 7.478, फिर 478 और चलता जा रहा है, इसका मतलब 478 पे क्या आएगा, बार आएगा। 478 पे क्या आएगा, बार आएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो चलता जा रहा है, कैसा है बट बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, तो पर ये कैसा एग्जाम्पल होगा, कौन सा एग्जाम्पल है ये, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप। सो स्टार्ट बेटा, देखो 7.478 बार, देखो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। देखो ये डॉट 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 चलता जा रहा है, इसका मतलब 478 के ऊपर बार है, बार आ गया ना, है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है। अब इधर आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे देखो क्या 1.101, यहाँ पे पहले है 101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 times 01 और चलता जा रहा है, मतलब नंबर डिफरेंट डिफरेंट है पर चलते जा रहे हैं। तो दिस इज इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, सो दिस इज एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। मैं एक बार और आपको ये समराइज कर देती हूँ कि रैशनल और इरैशनल में क्या फर्क है। देखो रैशनल नंबर तब होगा जब डेसिमल एक्सपेंशन बेटा इसमें टर्मिनेट भी होगी और नॉन टर्मिनेट भी होगी। रैशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी। टर्मिनेटिंग मीन्स देखो जैसे ये मान लो ये 15 था, तो आपको पता है 15 रैशनल नंबर है, अगर आ जाए 1.3 बार, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 1.33333 एंड सो ऑन। तो ये किसका एग्जांपल है, ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि एक नंबर है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जब सेम नंबर रिपीट होता है तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, रैशनल नंबर होता है। और ये भी क्यों एक रैशनल नंबर है बेटा, क्योंकि देखो 0.3796 इसके बाद कोई भी डॉट 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 नहीं है और कहीं पे भी बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो 478 के ऊपर 12, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो रैशनल नंबर है। जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ जाए और रिपीट हो रहे हैं, देखो ये चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपीट होना और चलते जाना, ठीक है। ये रिपीट भी हो रहा है और प्रोसेस चलता भी जा रहा है, तो ये रैशनल है। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, इरैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। नाउ वन क्वेश्चन from my side, beta in this exercise 1.3 there are some example number 7, 8, 9. in example 7, 8, 9 आपको क्या है, you have given some expressions और आपको उसको p by q की फॉर्म में करना है। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. I hope you will do और through portal you will send your assignment. Got it? तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेना। अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी I will help you. Got it? I hope you understood the concept of rational, irrational और terminating and non-terminating decimal representation. Thank you so much class. Take care.